काफी प्रोमिनेंट स्टार्टअप लीडर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि एमबीए अब ऑब्सोलीट हो चुका है, दैट अ ग्रोइंग नंबर ऑफ स्टार्टअप्स आर पुशिंग दिस आइडिया, इफेक्टिवली क्रिएटिंग अ प्रोपेगेंडा अगेंस्ट परस्यूइंग एन एमबीए। और हाँ, हो रही है, ये बात सच है। द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, इज एमबीए रियली वर्थ इट? ये क्वेश्चन आजकल हर जगह सुनने को मिल रहा है, फोरम्स पे, रेडिट पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, डिनर टेबल डिस्कशंस में भी। इंस्टाग्रामर्स, इन्फ्लुएंसर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स बात कर रहे हैं। टुडे वी आर नॉट आंसरिंग दिस विद अ हैशटैग और अ वन लाइनर. We are going a lot of notches deeper into this topic. So I'll walk you through some real numbers, real career paths, and practical advice, so you can decide if an MBA is really worth it for you. सवाल ये important है, पिछले सेशन में we talked about what is right for you may not be right for everyone else, and what is right for everyone else may not be right for you. The question in the center is you. एक और important बात, इस टॉपिक को काफी डिटेल में डिस्कस करना चाहता था, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो जाती, सो आई माइट बी ब्रेकिंग दिस इनटू 2 पार्ट्स व्हेन यू सी इट. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना, बिकॉज दैट विल बी द कंक्लूजन. ये आज पब्लिक डोमेन में काफी ज्यादा डिबेट चल रही है, जहां काफी प्रोमिनेंट स्टार्टअप लीडर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि एमबीए अब ऑब्सोलीट हो चुका है और उसे करने की जरूरत नहीं है. एट द सेम टाइम मेनी एआई फोकस्ड ओपन सोर्स कोर्सेज वाली कंपनीज are promoting those short-term 2 months, 6 months, 1 year courses, say as promising job readiness, enforcing that narrative कि MBA की जरूरत अब नहीं रही. ये sales है. Without naming specific companies, it is evident that a growing number of startups are pushing this idea, effectively creating a propaganda against pursuing an MBA. इसका मतलब ये भी नहीं है कि MBA सबके लिए जरूरी है. So you really need to examine who is saying what and why. Is this just a propaganda? और इज इट एन एक्चुअल मार्केट रियलिटी? काफी लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि काफी एमबीए कॉलेजेस भी बंद हो रही हैं, और हां, हो रही हैं, ये बात सच है. कुछ एमबीए कॉलेजेस वाकई में बंद हो रही है, लेकिन असली सवाल ये है, कौन सी कॉलेजेस बंद हो रही है? टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, लेट्स लुक एट द रियल पैरेलल. सो लेट्स गो बैक 40 to 50 years. Okay, 40-50 years ago there was a massive boom that started in the engineering sector. However, if you go back 5 to 8 years, we saw a slight slowdown in engineering, maybe more than slight. We saw that engineering colleges, some of them have shut down. In fact, we also see that those who did not shut down had to reduce their numbers. But institutions like the IITs, NITs, Triple IT, BITS, these kind of colleges, or even the regional top colleges, they have neither shut down, nor are they finding a lot of difficulty to fill the seats, especially in the sectors which matter, the functions which matter. Maybe एक ऐसा स्पेशलाइजेशन हो सकता है जहां पे डिमांड बिल्कुल नहीं है और उसमें फर्क पड़ा है. That's it. But good colleges have not suffered the same way. None of these top or reputed colleges have got affected so badly. Students आज भी सीरियसली JEE, IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इन इंस्टीट्यूशंस के काफी ग्रेजुएट्स आराम से 15 लाख के ऊपर के पैकेजेस कमा भी लेते हैं. They secure it. तो डिक्लाइन डिग्री का नहीं है, इश्यू इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी का है. नाउ टेक दिस पैरेलल टू एमबीए. सेम लेसन अप्लाइज टू एमबीएस. द डिग्री इटसेल्फ इज नॉट अ मैजिक टिकट. द क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम, योर एक्सपीरियंस इन लाइफ, योर गोल्स एंड योर एस्पिरेशंस, these are the things that matter, and hence which B school you enter and get out of, and how. That is what matters. Chapter 1, let's look at the data. Let's start with the numbers because numbers matter. Multiple studies, multiple placement reports show 2 consistent facts. टॉप बी स्कूल से एमबीए करने के बाद काफी लोगों को सिग्निफिकेंट सैलरी जंप मिल जाता है प्रीवियस जॉब के कंपैरिजन में. Some reviews measured a median post MBA increase that were very large, on the order of 20 lakh per annum approximately. But job markets for all industries have proven to be cyclical. Market cyclical है, uneven है, राइट? कभी जॉब मार्केट ऊपर जाता है, कभी जॉब मार्केट नीचे आता है. 2024 फॉर एग्जांपल showed a tough hiring landscape in many domains 2 years ago, with offers, pay dipping at several highly ranked schools. फर्क पड़ा था एमबीए कॉलेजेस में, बट जॉब में भी फर्क पड़ा था. दैट मीन्स टाइमिंग मैटर करती है, कॉलेज का ब्रांड भी मैटर करता है, डोमेन भी मैटर करता है, और अलॉन्ग विद डोमेन, if you're looking for courses or patches like analytics and product management, these are the hot selling points any day in any year. कंपटीशन काफी हाई होगा,
टॉप कंपनीज और टॉप रोल्स के लिए, बट उतनी ही अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल होंगी। ऐसे रोल्स तक पहुंचने के लिए आपको अपनी वर्थ प्रूव करनी पड़ेगी। बेसिकली वर्थ प्रूव कैसे करेंगे? कैट दिया, अच्छे आईआईएम में घुसे या अच्छे बी स्कूल में घुसे, दैट इट सेल्फ शोज दैट यू आर वर्थ। ये रियलिटी हर टाइप के कॉलेज के सामने है, चाहे वो आईआईएम अहमदाबाद हो, एमडीआई गुड़गांव हो या आईआईएम दिल्ली हो, किसी भी लेवल पे बात करो। सो व्हेन वी से दैट यू शुड डू एन एमबीए, इट इज क्लियर दैट यू शुड डू एन एमबीए फ्रॉम अ गुड कॉलेज। एमबीए आपको बिग फाइनेंशियल जंप दे सकता है, लेकिन सबको नहीं। एमबीए का पे ऑफ मेनली डिपेंड करता है कॉलेज की रेप्यूटेशन पे, उसका कॉर्पोरेट नेटवर्क, आपका प्री एमबीए एक्सपीरियंस, और क्या आपकी टारगेट इंडस्ट्री एक्चुअली एमबीए हायर करती है या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका एस्पिरेशन। कंसल्टिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्ट और कुछ टेक बिजनेस रोल्स, यहां एमबीए की डिमांड ज्यादा होती है। और मैंने इसमें एचआर का नाम अभी तक लिया ही नहीं, बट जस्ट लुक एट दिस डेटा। मिड साइज कंपनीज के सीएचआरओस, उनकी एस्टिमेटेड एज लगभग 40 to 45 ईयर्स होती है, मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन, और उनका सीटीसी 60 to 80 लाख पर एनम होता है। और हां, यह याद रखना जरूरी है कि एचआर एक नीश फील्ड है। सो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज हर जगह है, आज भी है। चैप्टर 2, career trajectories with and without MBA. I deal with a lot of students and I find the stories easier to follow than data and lists. So here are 2 career arcs and both are realistic. Trajectory A, let's call the student Priya. MBA route लेती है Priya. It's a traditional success story. In this, I have considered a pre-MBA CTC to be on the higher side. So मान लो age of Priya is 21 to 23 years. She's an engineer. She works in a mid-sized tech company. Product operations का role है, 7-8 लाख का salary है. As soon as she reaches a 23 to 25 years का range, she joins a full-time 2-year MBA at a top business school. During the MBA, she networks, does internships in strategy, takes case competitions, and does a lot of things. At 25 years old, she passes out and she gets placed in a top consulting firm with a package that is 3 to 4 times her pre-MBA CTC, 35 lakh. The MBA accelerated the switch and salary jump. Over the next 5 to 7 years, she will climb to a manager, senior manager role with substantial salary growth and leadership possibilities. Placement at the top B schools often produce these fast-tracked results. फायदा तो है। ट्रैजेक्टरी बी देखते हैं। Let's call the student रोहित। अब रोहित के केस में वो एमबीए नहीं करना चाहता। He is a steady builder, genuinely जॉब में ग्रोथ कर रहा है, कंपनी स्विच कर रहा है। सो एट एज ऑफ 21 to 23, रोहित भी सेम इंजीनियरिंग कॉलेज से सेम इंजीनियरिंग डिग्री लेके निकला है और सेम टाइप का टेक रोल कर रहा है लाइक प्रिया। बाय द टाइम ही इज 23 to 27, ही इज नॉट गेटिंग इनटू द एमबीए पाथ। इंस्टेड ही फोकसेस ऑन द लर्निंग डोमेन स्किल्स, मतलब एक्चुअल जॉब स्किल्स में काम करके। सो प्रोडक्ट ऑपरेशन से प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ही डज सर्टिफिकेशंस, ही डज हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट इन हिज कंपनी एंड जॉब, इंटरनल प्रमोशंस होते हैं, एक्सटर्नल स्विचेस होते हैं। He becomes a senior product role by 27, 28 years old. At 28 and above, Rohit's salary growth is steady. कभी ज्यादा, कभी थोड़ा कम, लेकिन जनरली वो MBA वाले बिग जंप जैसा नहीं हो पाएगा, so उससे थोड़ा स्लो ही होगा. However, by age 35, he will also be able to earn the same salary as an MBA like Priya did. Right? If he reaches that kind of a managerial or leadership position. फर्क ये है कि वो वही चीज प्रिया 26, 27 की एज में पहुंची थी जो रोहित 35 की एज में पहुंचेगा. So the key difference is the MBA can accelerate. It's not necessary that it will, but it can accelerate transitions. So function changes, consulting, finance, ये सब में घुसना है अगर मैं एक इंजीनियर हूं लेकिन मुझे मैनेजमेंट में जाना है तो आसान हो जाता है, फास्ट हो जाता है, आसान हो जाता है. It also becomes a quick salary multiplier hence, but sustained long-term earnings depend on performance only. Performance, role and industry, but ज्यादातर performance. So MBA shorten कर देता है ये switch time. Without MBA भी आप ये लेवल तक पहुंच सकते हो परफॉर्मेंस के बेसिस पे. ऐसा नहीं कि it's not possible. बस टाइम ज्यादा लग जाता है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम हो जाता है, पार्ट डिफरेंट होता है. बस इस पार्ट के लिए हम यहीं तक बात करते हैं. नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना बिकॉज इसी का कंटिन्यूएशन है जहां हम एमबीए के हार्ड और सॉफ्ट कॉस्ट की बात समझेंगे, आरओआई कैलकुलेट करने की बात करेंगे, एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला शेयर करूंगा जहां से आप डिसीजन ले सकते हो और ये भी डिस्कस करेंगे कि एमबीए करें या नहीं और कौन करें और काफी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो सी यू इन द नेक्स्ट वन.